So, students, in this topic, we are going to discuss about another part of marketing principles, that is called marketing mix. I think you all heard about this marketing piece, which is also known as the four P's of marketing. So, before going to the topic, I'd like to give a simple description about this topic. That marketing is a consisting of four elements mainly, that is called product, price, place, promotion, and all the first letter of this four element is start with P. So that's why it is in short we called 4 Ps of marketing. But so many management thinkers after means applying these elements to their management process, they also some of them also added some another elements. We in this topic we are going to discuss also those elements with this 4 P's of marketing. For example, like with 4 P's we'll discuss 7 P's of marketing. Again we'll discuss the C's of marketing. Okay, so let's start with the 4 P's of marketing. So before discussing the 4 P's of marketing, here we need to know that what is the marketing mix. That there are so many tools which are used in marketing. As you already mentioned, we have given the definition of marketing. So on that definition we have discussed lots of tools which are used in marketing. So these tools are used to develop the strength and limit the weaknesses of the organization. Means I want to say that to develop the strength of the organization and to limit the weakness of the organization. And after that, today's in modern organization there are so many competitions are there. So how to compete in this situation with another firm, and how to adapt ourselves with that competitive market, that is also part of this marketing next discussion. Next, now many organizations are running so many departments under the same roof, and departments are different, but they are coming under the same roof. So what is the means collaboration, or what is the coordination between the all departments, and what is the collaboration between the partners of the departments? This is all things we need to know for better marketing. So these all are covered up by marketing mix elements. If we'll discuss in the next slide one by one. Okay, so here written that since the 1950s the element of marketing mix have undergone various transformation. Means ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक के बाद एक चेंज होता गया है. ठीक है, किसी ने ये बोला था, किसी ने वो बोला था, ऐसा करके चेंज होता गया. सो मैनी टेक्नोलॉजी आया गया, सो मैनी चेंजेस हुआ. होने के बाद जो फाइनली जो एलिमेंट को बेस्ट बोला गया है, डेट इज़ कॉल 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. यहाँ पे इन दी 1960 यहाँ पे एसोसिएट किया गया था. डेट इज़ प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस. सो प्राइस मीन्स व्हाट, एवरी प्रोडक्ट हैव ए डिफरेंट प्राइस. सेम प्रोडक्ट का भी अलग अलग प्राइस होता है. जैसे कि अगर मैं बोल देता हूँ कि एक साबुन का एक 50, कोई भी साबुन अगर लो छोटा वाला तो 5 रुपया होता है. अगर वही साबुन बड़ा वाला लो तो 10 रुपया होता है. ठीक है, जैसे कोलगेट का है 100 ग्राम का इतना, 50 ग्राम का इतना, 10 रुपये में मिल जाता है. सो सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होता है. और एक ही कंपनी एक ही तरह का सामान, मतलब एक ही ब्रांड का सामान, कभी सपोज एग्जांपल अगर दो तो कोई भी शर्ट्स या जीन्स का ये मतलब एडवर्टाइज मतलब एग्जांपल ले सकते हैं. वो सेम कंपनी का जीन्स हमको 1000 का अंदर भी मिल जाएगा, और वही कंपनी का जीन्स तुम्हारा 50,000 60,000 का भी मिलता है. सो इट डिपेंड करता है एरिया, किस एरिया में मतलब ये ऐसा सामान हम बेच रहे हैं. अभी अगर ये दिल्ली मुंबई हो तो हम लोग कोई भी कोस्ट मैटर नहीं करता, हर तरह का सामान सेल हो जाएगा. लेकिन अभी अगर सुकानजान बकाजान में अगर 50,000 और 60,000 का जीन्स लाए तो सिर्फ लटका ही रहेगा, कोई ख़रीदेगा नहीं. ठीक है, बिकॉज ऑफ 50-60,000 से पूरा ख़ानदान का और आमने सामने का गांव का भी थोड़ा बहुत कपड़ा आ जाएगा. सो दैट्स वाई प्राइस डिटर्मिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड फॉर विच प्लेस विच प्राइस इज़ सुटेबल, ये बहुत बड़ा बात है. एंड प्राइसिंग इज़ नॉट अबाउट दैट. प्राइसिंग ऑल्सो ए स्ट्रेटजी बाय विच ए प्राइस इज़ गिवन टू ए प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को प्राइस देने के लिए जो जो स्टेजेस आता है वो सारा प्राइस का अंदर ही आता है. ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द
फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन ऑफ ए प्रोडक्ट। जब कोई प्रोडक्ट का मतलब प्राइस दिया जाता है तो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट डालता है, इसके बारे में तुम लोग नेट पे भी मिल जाएगा। और अगर थोड़ा और जानना है तो मैं बाद में तुमको बता दूंगा। ठीक है, अभी ऐसी प्राइस के बारे में जानना है कि प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग मीन्स डिटरमाइन द प्राइस और द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट थ्रू सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये मैं इजी सेंस में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट टू सोल्ड, क्या बिक्री करना है। ढेर सारा प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या बिक्री करना है, कब बिक्री करना है, कहाँ पे बिक्री करना है। बिकॉज हर प्रोडक्ट का डिमांड हर जगह नहीं होता है, और हर प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है। एक साइकिल मीन्स एक इनिशियल स्टेज होता है जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होता है, फिर वो मार्केट में वेल नोन हो जाता है। फिर एक टाइम होता है जो दूसरा प्रोडक्ट मार्केट लेता है, तो ये जो पूरा हमारा पहले का प्रोडक्ट था वो धीरे धीरे मार्केट छोड़ देता है। सो एक दिन जाके वो प्रोडक्ट गायब भी हो जाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में मिलता ही नहीं है। ठीक है, पहले उसका लेने के लिए आदमी पागल था, लेकिन अभी उसको कोई लेना ही नहीं खोजा। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सेल फोन्स। बहुत सारा कीपैड मोबाइल है जो हम लोग यूज़ करते थे, जिसके लिए आदमी पहले बहुत पागल था, लेकिन अभी अगर किसी को कीपैड मोबाइल दिया जाए तो मैक्सिमम आदमी बोलेगा ये नहीं चाहिए, हमको स्क्रीन टच ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि हो गया जावा, फिर हो गया एंड्रॉयड, फिर और अभी तुम लोग को मुझसे ज़्यादा ही पता होगा कि ढेर सारा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो रहा है एक के बाद एक। ठीक है, तो ऐसा ही जैसे कि हो गया एप्पल, अभी वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। तो एप्पल को कुछ दिन बाद और दिन बाद शायद और मैंगो निकल जाएगा, तो उसका मार्केट पकड़ लेगा। सो एक प्रोडक्ट का स्टार्ट होता है और उसका एक एंडिंग टाइम भी होता है। सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट। तो व्हाट टू सेल, व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। ठीक है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कोई कोई मार्केट जो दूसरा मार्केट में उसका डिमांड कम गया है, लेकिन वही प्रोडक्ट जब हम कोई दूसरा कंट्री में लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल होने लगता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट। एंड अगर कोई बोले कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट मीन्स इज ए टेंजिबल थिंग विच कैन बी टच और विच कैन बी सीन, इसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, बट प्रोडक्ट के बारे में अगर बोला जाए तो हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट क्या है ये नहीं बोलना है, उसके साथ में हमको देखना है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, कैसे एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, कैसे वो मार्केट से गायब होता है, और कैसे उसके जगह एक नया प्रोडक्ट पकड़ लेता है। और जो प्रोडक्ट का डिमांड कम गया है उसको अभी कौन सा मार्केट में लॉन्च करने से फिर से उसका डिमांड बढ़ेगा। सो बाय दिस वे मीन्स प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ओके, विदाउट प्रोडक्ट मार्केटिंग हो ही नहीं सकता है। वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट आफ्टर प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, दैट इज़ कॉल प्रमोशन एंड प्लेस। अब प्रमोशन मुझे ये ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, तुम लोग को टीवी देखते हो एडवर्टाइज होता है, फिर कभी कभी तुम लोग को देखता होगा तुम्हारा घर में आता है बहुत सारा आदमी बैग लेके आता है, टाई पहन के, वो सब होता है। फिर सेल्स प्रमोशन होता है, देखा है ना, गाड़ी उड़ी लेके रास्ते में बैठ जाता है, प्रमोट करता है सेल्स को। फिर इंटरनेट में भी अगर हम लोग कभी कभी यूट्यूब चलाते हैं तो एडवर्टाइज आ जाता है, या फिर ढेर सारा कैटलॉग दिखा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा ट्रेड फेयर होता है, ट्रेड फेयर में हम लोग पार्टिसिपेट करके अपना प्रोडक्ट को पे डिस्प्ले कर सकते हैं, फिर आदमी लोग उसके बारे में पता चलेगा। सो देर आर सो मेनी वेज, ओके, बाय विच वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट इन दी मार्केट। सो प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। आफ्टर दैट प्लेस मैंने पहले ही बोला था, इससे पहले जो प्रोडक्ट था उसमें बोला था कि व्हिच प्लेस इज़ सुइटेबल, ओके, और व्हिच प्लेस इज़ सुइटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अलावा ये कौन सा प्लेस परफेक्ट है ये तो जानना ही है। उसके बाद भी प्लेस का और एक नाम है, उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोडक्ट बनता है एक जगह में, द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन ए प्लेस एंड इट इज कंज्यूम इन अनदर प्लेस। सो द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोडक्ट्स आर come from the place of their origin to place of their consumption, the whole process is called physical distribution of the प्रोडक्ट। तो इस तरह एक प्लेस से दूसरा प्लेस में प्रोडक्ट को मतलब भेजना, ये भी एक मार्केटिंग मिक्स का ही पार्ट है। तो इसको प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इन शॉर्ट बोले तो प्रोडक्ट को प्लेस करना। इसका अंदर में बहुत सारा मतलब फंक्शंस आ जाएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउस जहाँ पे सामान को रखा जाता है, इन्वेंटरी जो है वो उसको स्टॉक कैसे मेंटेन करना है वो भी देखते हैं। एंड ढेर सारा फ्रेंचाइजी भी हम लोग दे सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना प्रोडक्ट मतलब जहाँ पे अगर कस्टमर चाहे तो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि हो गया जूता, तुम लोग शू का जो हम लेते हैं एडिडास, रीबॉक,
ये सब का फ्रेंचाइजी वो लोग देता है, तो तुम भी अब उसका फ्रेंचाइजी लेके अपना जगह में उसका शोरूम बना सकता है। सो ये तो हो गया द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। फिर से एक बार बोल देता हूँ, प्राइस, ठीक है, तो प्राइस शुड बी डिटरमाइन इन ए प्रॉपर वे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, without product there is no marketing. Next one is promoting. The promotion of product is very much important to sell the product and place the means transfer of goods from one place to another place. ये चारों हो गया very important part of marketing mix. So these are called 4P. फर्स्ट लेटर देखो PPPP means 4Ps of marketing. उसके बाद हम लोग चलते हैं तो 7Ps of marketing mix, ठीक है। ये 4 पीस तो कंपलसरी है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है जिसके लिए हमको और 3 पीस के बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, फर्स्ट ये पे देखो फिजिकल एविडेंस लिखा हुआ है। फिजिकल मतलब एविडेंस तो तुम लोगों को पता ही होगा, एविडेंस मीन्स प्रूफ होता है। तो फिजिकल एविडेंस में इंक्लूड इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा, इससे क्या हो गया, प्रोडक्ट को पैकेज करना, फिर डिलीवरी करने के बाद उसका रिसीप्ट लेना, ठीक है, फिर सिग्नेचर बहुत सारा मैटर में लेना होता है, फिर ऐसा बहुत सारा मतलब फिजिकल स्टोर जो है उसके बारे में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेना। तो प्रोडक्ट परफेक्टली वो सेल हो रहा है कि नहीं, सारा जो है फिजिकली हमको एविडेंस, मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको फ्रेंचाइजी दिया उसके बाद मैं कोई उसका खबर ही नहीं रखूँगा। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दिस ऑल आर कम अंडर फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पीपल। ये सारा एक्टिविटी तो चलता है मार्केटिंग का, वो सारा आदमी की तरह ही चलता है, वर्कर की तरह चलता है। सो इसको बोलते हैं पीपल। जैसे कि एम्प्लॉइज़ हो यहाँ पे दिया हुआ है, दोज हु इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर, डायरेक्टली कस्टमर्स के जो है रिटेलर को ले सकता है तुम, ठीक है, या फिर जो सेल्स एजेंट है वो लोग को ले सकते हैं। और उसके बाद तेरा सो मेनी स्टाफ चाहिए, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। ये सारा जो है वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो एक आदमी को सिर्फ नौकरी में रखने से नहीं होता, उसको कैसे ट्रेन किया जाए, उसके बाद ट्रेन करने के बाद वो कैसे अपना काम करेगा, उसका काम का जगह क्या है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, ये सारा उसको पता होना चाहिए। सो ये पीपल जो है ये भी एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अनदर पी, ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है एक सिस्टमेटिक वे से होता है, ठीक है। एक एम्प्लॉइज़ मतलब एक एम्प्लॉय से अगर कोई सामान भी जा रहा है तो एक एम्प्लॉई उसको 1 to 1 पास कर रहा है और वो जाके कंज्यूमर के पास मतलब डिलीवर हो जाता है। सो इसमें क्या प्रोसेस यूज़ करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट परफेक्टली जाके एक आदमी से जाके दूसरा आदमी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉई लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि तुम लोग देखते हैं ना फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन, जियो, ये सब का जो आता है बैग लेके, तो वही लोग का एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। ये एक प्रोसेस है, तुमने ऑर्डर कहाँ पे किया था, फिर आके तुमको दे कोई दूसरा रहा है, तो एक चैनल है जिसके द्वारा तुम मतलब वो आगे प्रोडक्ट टू फाइनल डोर में पहुँच जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा हम परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसका प्रमोशन होगा, जिसका काम ख़राब हो रहा है उसका शायद वार्निंग दिया जाएगा या फिर उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होगा। तो ये सारा मतलब काम जो है प्रोसेस का अंदर रहता है, एक प्रोसेस है। और प्रोसेस जितना अच्छा होगा सर्विस भी उतना बढ़िया होगा, प्रोसेस ख़राब होगा तो सर्विस भी मतलब अच्छा नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। एंड ये तीनों जो हो गया 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, और 4 और इधर में 3 पी, मतलब फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड प्रोसेस। ये 4 + 3 7 मिला के हो जाता है 7 Ps ऑफ मार्केटिंग। ये अलग नहीं है, 4P + 3P इक्वल टू 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो ये अगर तुम लोगों को समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे पूछ सकता है, ठीक है। मैं अगर व्हाट्सएप में नहीं सका तो आई थिंक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है कि जल्दी कॉलेज खोलने वाला है तो मैं आके तुम लोग को फेस टू फेस ये क्लियर कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 Cs ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो बिफोर स्टार्ट डेट मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि ये मुझे समझ में नहीं आता है, तो व्हाट्सएप में डेफिनेटली आई विल सॉल्व। तो अगर तुमको ये कंज्यूमर समझ में नहीं आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कस्ट नहीं, तो मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम पूरा 7 पीस ऑफ मार्केटिंग है या फिर पूरा मार्केटिंग मिक्स ही पूछ दोगे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तुम लोग शायद सुन रहे हो कि मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉट पॉसिबल टू मीन्स सॉल्व
टॉप टू बॉटम एवरीथिंग इन ऑनलाइन बेसिस। ओके, उसके लिए तुम लोग ढेर सारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, वो देखो, या फिर खुद और इजी सेंस में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से दूसरा वेबसाइट खोल के तुम लोग बना सकते हो, या फिर मैंने जो यहाँ पे लिख के दिया है इसको अच्छे से देखना, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आता है टॉपिक टू टॉपिक, जो समझ में नहीं आया तुम लोग मुझे फ़ोन करना, 2-3 बार सुनने के बाद मैं तुमको ऑन द स्पॉट समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बात याद रखना कि सारा टॉपिक पूछ देने से मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। नेक्स्ट 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे 1990 में जो 4P हुआ था, उसके बाद उसके साथ ही और एक C भी यहाँ पे मतलब प्लेस किया गया था, ठीक है। इसमें सब बिज़नेस में इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट कभी कभी मतलब ये C भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है मार्केटिंग मिक्स का। तो वाई इट इज़ कॉल्स 4 C's ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज चारों का जो लेटर है लाइक P, फर्स्ट लेटर C से स्टार्ट होता है, कंज्यूमर, पोस्ट, और नेक्स्ट में देखा जाए तो कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंज्यूमर पार्ट। यहाँ पे लिखा है C मीन्स कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज़ द, अगर मैं अपना सेंस में बोलूँ तो कंज्यूमर इज़ द गॉड फॉर द बिजनेस। सो वी नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर एंड वी मस्ट ट्राई टू फुलफिल देयर ऑल नीड्स एंड वांट्स। जितना तुम लोग उसको सर्विस दोगे, जितना तुम उसको सेटिस्फाई करोगे, उतना ही तुम्हारा कस्टमर का ध्यान तुम्हारा बिजनेस की तरफ या तुम्हारा प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, या फिर कोई भी सर्विस हम लोग जब देते हैं तो उसका एक कॉस्ट होता है। तो हमको ट्राई कॉस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट जो है कॉम्पिटिटिव हो। ये नहीं होना चाहिए कि सर्विस अच्छा दे रहा हूँ तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्ट पे हम लोगों को ध्यान देना होगा कि कम से कम दाम में हम लोग अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मतलब कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। कॉस्ट मतलब द टोटल प्राइस विच वी इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस ए गुड्स, और बनाने में जितना खर्चा होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। उसमें सारा ऐड हो जाएगा जितना खर्चा हुआ है, सैलरी से लेके, सैलरी में कितना खर्चा हुआ है, रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में, सब ऐड करके एट लास्ट जाकर हमको कॉस्ट निकालते हैं। तो जितना कम कॉस्ट में तुम ज़्यादा चीज़ बनाओगे, उतना ज़्यादा तुम कम दाम में सेल कर पाओगे एंड पीपल विल बी मोर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सर्विस। तो ये हो गया कंज्यूमर एंड कॉस्ट। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सी में, इट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस। मतलब इतना होना चाहिए, सपोज़ मैंने एक ऐप पे एक प्रोडक्ट देखा, मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद ये प्लेस ही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मतलब मेरा वेरी कन्वीनियंस। फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है, तुम लोग ऑर्डर देते ही प्लेस हो जाता है, कुछ दिनों में आके डिलीवर हो जाता है। ऐसा ही कन्वीनियंस होना चाहिए कि ऑर्डर देते ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए मार्केट में, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए तुम एडवर्टाइज़ करो। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी ऐड कर सकता है कस्टमर्स को अपना ग्रुप में, फिर मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में वीडियो बना के अपना छोड़ सकता है। तो आदमी जब सर्च करेगा तो तुम्हारा भी उधर वीडियो आएगा, ठीक है। सो तो तुम्हारा वीडियो देख के अगर अच्छा लगा तो ऑनलाइन वो लोग ऑर्डर करेगा। सो in this digital world it's very easy to directly touch with the customer, and not only in within the country, you can also touch with the out of the country, means other foreign country के साथ भी तुम कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, थ्रू सम ऐप बना के भी तुम बन सकते हैं। तो आजकल बिजनेस जो है फैलाना जो उतना टफ नहीं रहा, वेरी इजीली तुम उसको मतलब एक्सपांड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ मार्केटिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इन कंक्लूजन में मैं बोलूँगा कि सेकेंड ईयर में शायद तुम लोग को 4 ही मिला था, तो यहाँ पे हमने 7 मिला, प्लस उसके साथ 4C भी मिला। सो ये सारा जो है मार्केटिंग मिक्स का पार्टी है। आई थिंक कुछ यह उतना टफ नहीं था, मैं हिंदी में ही बोला हूँ, बिकॉज ये ऐसा भी आ रहा है कि मैसेज हमको बहुत सारा है जो इंग्लिश प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश, आई विल क्लियर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। सो अगर असमी में भी चाहिए तो मैं बोल दूँगा, बट ऐसे अगर लैंग्वेज चेंज करता रहूँ तो एक टॉपिक के लिए 3 दिन लग जाएगा। सो जस्ट बिकॉज इट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, सो आई एम यूजिंग दिस एंड लिटिल बिट आई mix English language with this Hindi language. So if you have any doubt or queries, your means confusions and everything is most welcome, okay। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना,
इसके साथ मैं ये प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।